کہ ہماری اینالسٹ ہے بینظیر شاہ صاحبہ، ان کی صاحب سے بات ہوئی ہے. تو بینظیر سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ ایسا کیا متنازع مواد تھا، کیا بتایا آپ کو ایم ڈی صاحب رائے منظور صاحب نے کہ کیوں یہ پابندی لگائی گئی، اور یہ جو 30 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بتائیے گا روشنی. علینا پہلے تو تھوڑی سی کنفیوژن تھی کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک پنجاب میں ایک قانون آیا تھا جس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈی جی پی آر جو ہیں وہ کسی بھی کتاب دکان میں جا کے کتاب کو کانفسکیٹ کر سکتے ہیں. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس قانون کے تحت یہ 100 کتابوں کو پہ پابندی لگائی گئی ہے، ان کو بین کیا گیا ہے. یہ ایکچولی بات یہ نہیں ہے کیونکہ میری آج رائے منظور حسین صاحب سے بات ہوئی. یہ ایک آیا تھا 2015 میں ایک قانون، مسلم لیگ نون کو آپ نے فل کریڈٹ دینا ہے اس قانون کا. وہ ایک قانون لائے تھے، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ایکٹ تھا 2015 کا. اس قانون کے تحت اگر کسی بھی کتاب میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو یا نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو، ڈیفنس کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو، تو وہ کتاب پہ پابندی لگ سکتی ہے، اور بورڈ جو ہے جس کے یہ ایم ڈی ہیں رائے منظور صاحب، وہ پابندی لگا سکتے ہیں. اچھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ابھی آپ نے 100 کتابوں پہ پابندی لگائی ہے اور پہ لگ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1000 کتابیں 10,000 کتابیں ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور ابھی ہزاروں کتابوں پہ پابندی لگ سکتی ہے. اچھا، میں نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا کہ دیکھیں پاکستانی آئین میں ہمارے ایک ہے آرٹیکل 10A، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. تو میں نے کہا جب آپ نے پابندی لگانے سے پہلے کسی رائٹر کو، کسی آتھر کو بلایا ہو، ان سے پوچھا ہو کہ آپ اپنا دفاع پیش کریں، آپ بتائیں یا اس کو ہم امینڈ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، یا کوئی ڈیو پروسیس آپ نے فالو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو مطلب کہ یہ سب سے پہلے تو یہ پابندی بڑے آرام سے عدالت میں آپ چیلنج کر سکتے ہو. دیکھیں یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا رائے منظور صاحب فیصلہ کریں گے کہ ہمارے بچے کون سی کتابیں پڑھیں گے اور کون سی کتابیں نہیں پڑھیں گے، یا ہم یہ فیصلہ کریں گے؟ یہاں پہ ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہم کافی دیر سے بات کر رہے ہیں، یوٹیوب بین کر دو تو ٹک ٹاک بین کر دو تو وہ گیم بین کر لو، اور ہمیں ایکسکیوز کیا دیا جاتا ہے کہ یہ ہم تو لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. اچھا، جو لوگ ہیں، جو عام عوام ہیں، آپ اور میں ہیں، ہم ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہی نہیں ہوتے. وی آر ناٹ پارٹ آف دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس. ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم کل کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بلاکڈ ہے. ہم کوئی کتاب لینے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ بین ہے. تو ہمیں جن کے لیے کیا جا رہا ہے ان کو آپ نے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ نہیں بتایا. اب آپ یہ کمیٹی کی بات کر رہی ہیں. اب میں نے ان سے مجھ سے کہا 30 ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں اور وہ ساری رات بیٹھ کے کام کرتی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا رات کو بھی میں بیٹھ کے صبح کے 5 بجے میں جا کے سویا ہوں. بھئی اس کمیٹی میں ایکسپرٹس کون ہیں؟ جو ہمارا بنیادی سوال ہے اس سے متعلق آپ سے آنسر لوں، میں تھوڑا سا یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی براہ راست بات ہوئی ہے. تو یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو اس میں کچھ ایسا قابل اعتراض مواد تھا کہ کہیں مس پرنٹنگ ہوئی، وٹ ایور، وی انڈرسٹینڈ، لیکن جو سائنس اور ریاضی کی کتب میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے اس میں کیا ایسا مواد تھا جس کے اوپر پابندی لگائی گئی؟ سائنس کا مجھے نہیں پتا، میتھس کے بارے میں انہوں نے مجھے ضرور بتایا. انہوں نے کہا ایک کتاب میں گنتی سکھائی جا رہی تھی چھوٹے کلاس کے بچوں کو، اس میں انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی ایک پگ کی. تو انہوں نے کہا کہ پگ کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبوتر کی لگا دیتے، بکری کی لگا دیتے، کسی گائے کی لگا دیتے، پگ کی کیوں لگائی؟ تو میں نے کہا ان سے کہ ہم لوگ تو بچپن میں وہ بھی پڑھتے تھے، 3 لٹل پگز ایک کتاب ہوتی تھی. ہم لوگ، میری تو بیٹی بڑی شوق سے، وہ ایک شو ہے اس کا نام ہے پیپا پگ، وہ بھی دیکھتی ہے. تو انہوں نے خیر اس پہ میرے خیال سے انہوں نے شاید پڑھی بھی نہیں ہے 3 لٹل پگز. انہوں نے کوئی اس کا مجھے جواب نہیں دیا. تو یہ اس قسم کی مطلب ان بنیادوں پہ اور کتابوں پہ آپ کو وہ بین لگ نہیں بتائیں جن کے اوپر سائنسی کتابوں کے اوپر نہیں. اور پابندی دیکھیں لگی یہ بڑا کہ اس میں ضروری ایسا کیا ہے مواد تھا؟ علینا، یہ کیونکہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے، یہ کون ہیں ایکسپرٹس؟ یہ کون ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو ہماری انفارمیشن بند کر رہے ہیں؟ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ان کی بیک گراؤنڈ ان کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. میں ایک علینا، آئی ایم سوری، میں آپ کو بہت آج ٹائم لے رہی ہوں. میں چھوٹا سے ایک بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں میں چھوٹی سی یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی. یہ جو ادارے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں نا کہ اس کو بند کر دیں تو اس کو بند کر دیں، ایکچولی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 21st سینچری ہوتی کیا ہے اور یہاں پہ انفارمیشن کیسے شیئر ہوتی ہے. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں. میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہی ہوں موساد کے بارے میں، ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیل کی. اچھا، اس کتاب کو بند کرنے کے لیے پوری کوشش کی گئی کہ وہ جو صحافی ہے اس کو انفارمیشن نہ ملے، اور بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے اسرائیل کے بارے میں، اس کو انفارمیشن نہ ملے، کتاب کو بین کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ پھر بھی چھپ گئی کتاب. اور میں آج پاکستان میں بیٹھ کے وہ کتاب پڑھ رہی ہوں کیونکہ 21st سینچری میں آپ انفارمیشن ایسے بند نہیں کر سکتے. اگر کتاب آپ نے بین لگا دی تو ہم انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں گے، اس کی PDF مل جائے گی. اویلیبل ہے بچوں کے پاس. بچے بڑے کلیور بھی ہو گئے ہیں. اب
खैर अपने एनालिस्ट के पास चलते हैं और बुनियादी सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या पंजाब टेक्स्ट बुक का ये इकदाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। महमल बेनज़ीर की आपने इनसाइट भी सुनी, क्या है आपका ओपिनियन? देखिए अलीना, जो उस बेनज़ीर ने पिछले सवाल में बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने ये कहा कि जो एक फ्रीडम या कह लें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसको बड़ी एक हिट लगी है हुकूमत के तहत, तो ये बात उनकी दुरुस्त है। ये नून लीग ने कानून बनाया, नून लीग भी जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के मेरे ख्याल में उसमें मेयार पे पूरी नहीं उतरती और शायद पीटीआई उसको एक और हद तक आगे लेकर जाना चाह रही है, खासतौर पे किताबों की जो आप बैन वगैरह की हम बात करते हैं। देखिए एक तो ये एक बड़ी परेशान कुन सी बात है क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसी दुनिया में रहते हैं, तो हम बच्चों को इस तरह आइसोलेट नहीं कर सकते अपने बच्चों को कि वो सीख ही ना सके कि दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है। फिर देखिए दूसरी एक इसमें बहुत जो बेसिक बात है वो ये है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो सोसाइटी का नैरेटिव तय करती हैं। आपने देखा होगा कि 80 की दहाई में जब ज़ियाउल हक साहब के अंडर चेंज हुआ सिलेबस भी और काफी ज्यादा इस तरह की चीजें आई और तो उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक अभी भी हम कहते हैं ना कि ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान है कि एक्सट्रीमिस्ट या इंटॉलरेंट सोच जो है वो बहुत बढ़ी पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो रियासत को अपना काउंटर नैरेटिव बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि ये कि एक और न्यू नैरेटिव बना रहे हैं। और देखिए सेंसरशिप तो हो नहीं सकती। आप क्या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं कि जहां आपको इंटरनेट की एक्सेस नहीं है प्रॉपर या आपको चीजों की एक्सेस नहीं है। हम एक डिफरेंट माशरे में रहते हैं। हमें कोई भी चीज अगर आप बैन भी करेंगे तो बच्चों को माँ बाप ने अगर पढ़ाना है तो वो कहीं इंटरनेट से उठा के या कहीं से बाहर से मंगवा के वो कुछ ना कुछ पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जब किसी की सोच जो बंद करने की बात है ना, मुझे इससे सच्ची बात है अलीना, मुझे बड़ी एक घुटन का वो लग रहा है और मुझे बड़ा ही ये डेंजरस सा ट्रेंड लग रहा है। मतलब आपको इस तरह से लग रहा है कि शायद ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं। देखिए आप जदीद निसाब बनाने की बजाय और बजाय इसके कि टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आप बड़े नाम बड़े दानिश्वर लेकर आए, कुछ चॉम्स्की जैसा बैठा हो जो किताबें बैन कर रहा हो। बगैर बैन तो चॉम्स्की कभी भी नहीं करेंगे, बैन तो करनी भी नहीं चाहिए। तो आप इस तरह के पॉपुलिज्म करते हैं तो आप मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो बुनियाद है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आप उसी को खतरे में डाल देते हैं और उसी की नफी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा परेशान कुन बात है। मैं तो इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है ना, आई गेट योर पॉइंट। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको लग रहा है कि इस इकदाम से बल्कि हमारे बच्चे और पीछे चले जाएंगे, ये दकियानूसी बात लग रही है आपको थोड़ी? देखिए ठीक है, भट्टी साहब को कमेंट जानते हैं। किसी चीज पे सिर्फ मैं इसमें लीना कहूंगी कि तारीख में किसी भी चीज पर पाबंदी, किताबों पर पाबंदी जो थी ना उसका बहुत तारीख एक हमें मिलता है उसकी एग्जाम्पल, तो वो कोई फ्यूचर अच्छा नहीं है। तारीख फ्यूचर अगर ऐसा करेंगे। ठीक है इरशाद भट्टी साहब। देखिए किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में बंद कर दो, ख़त्म कर दो, पाबंदी लगा दो, ये आखिरी हरबा होता है। और हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से ये पहला हरबा होता है हमेशा हर चीज़ में। बंद कर दो, ख़त्म कर दो, पाबंदी लगा दो, ये अफसोसनाक बात है। ये ज़हनों पर पाबंदी लगाने की बात है, ये शऊर को कैद करने की बात है। एक तारीख उठाकर देख लें, एक फतवा आया था प्रिंटिंग प्रेस के ख़िलाफ़ माजी में और इसके असरात देख लें क्या हाल हो गया। वो मुसलमान जो साइंस अदब इल्म में लीड कर रहे थे फिर कैसे अंधेरों में डूब गए। हमारा ये हाल है कि किसी मजहबी मसले में इमाम काबा को बुलाना पड़ता है। किस कोरोना से बचना है, तरावी का मसला है तो हमें जामिया अल अज़हर के फतवे का इंतज़ार करना पड़ता है। देखें बच्चों की जो किताब है रियाजी की किताब, ये मैथ की किताब है। अब मुझे हैरानगी ये भी हो रही है कि मैथ की किताब में ये चीज़ें कैसी हैं। सुवर की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और चीज़ें लगा लें भाई आप। क्रिसमस, न्यू ईयर, हेलोवीन, वैलेंटाइन और अप्रैल फूल के जैसे तज़किरे हैं मैथ की किताब में। मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं अपने ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं, बदल दें। अच्छा ये आगे आ गया है कि पंजाब असम्बली कमेटी ने अमरीकी मुसन्फ़ा लेज़ली हेज़लटन की 2 किताबें हैं, द फर्स्ट मुस्लिम, द आफ्टर द प्रॉफिट, 2, इन पर पाबंदी लगा दी है। मज़हरुल हक साहब की इस्लाम की एक मुख्तसर तारीख, इस पर पाबंदी लगा दी है। कोई पता नहीं क्यों लगाई है। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पहले ही ओ लेवल में पढ़ाने वाली इस्लामियात की किताब पर पाबंदी लगाता है जिसके उनको सफ़ा नंबर 210 से 220 में काबिल एतराज़ मवाद उनको नज़र आया। ठीक, अच्छा सब हक़ाइक़ दुरुस्त करें, सब चीज़ें दुरुस्त कर लें मुशावरत से, मुसन्नफ़ के साथ, चीज़ों के मिल बैठ के। कमेटियाँ रात को अकेले काम ना करें, मिलकर काम करें। अब जो रियाजी की जिसमें सुवर की तस्वीर हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, हेलोवीन है, वैलेंटाइन है, अप्रैल फूल है, ये मुझे नहीं लग रहा कि रियाजी में, नियाजी साहब मुंह से निकल गए, रियाजी में अप्रैल फूल क्या कर रहा है?
रियाजी में वैलेंटाइन क्या कर रहा है, रियाजी में, मैथ में हेलोवीन क्या कर रही है। तो हम भी बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं, जो ये किताबें बहुत यानी दूसरी जमात से बच्चों को हेलोवीन पहना दो, ये सूरत बिचा दिखा दो, और भी बड़ी चीज़ें, कबूतर जा जा जा, प्यार की पहली चिट्ठी कबूतर ले जा, फाख्ता कर दें, और बड़े हैं भैंस कर दें, बकरी कर दें, कट्टे कर दें, कुछ कर दें। खुदा के लिए ये ना करें, ये मेहरबानी करें, ये ना करें, और लेकिन सारा कुछ हो मुशावरत के साथ। लेकिन इसमें अलीना क्या बुराई है? अगर एक किताब में एक तस्वीर है एक जानवर की, तो उसमें क्या बुराई है? मुझे बुराई लगती है, मुझे बुराई लगती है। मैं अपने बच्चे को इस क्लास में सुअर की तस्वीर नहीं दिखाना चाहता, क्रिसमस नहीं दिखाना चाहता, न्यू ईयर इसमें नहीं दिखाना चाहता, हेलोवीन नहीं दिखाना चाहता, वैलेंटाइन नहीं दिखाना चाहता, अप्रैल फूल नहीं दिखाना चाहता। मेरा बच्चा जब बालिग होगा, जब अपने फैसले खुद करने लगेगा, उस वक्त ये सब कुछ कर ले, उस वक्त ये सब कुछ कर ले, उस वक्त सब कुछ कर ले, जो करना चाहता है करे। लेकिन मेरे बच्चे को रियाजी की किताब में ये चीजें नहीं दिखनी चाहिए, ये मैथ की किताब। दूसरे की बात सुने, आर्गुमेंट सुने, फिर जवाब दीजिएगा बेनजीर। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इसमें बुराई क्या है? आप अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, एक जानवर है, अल्लाह ने ही बनाया ना, जानवर है। और जहाँ पे इस्लामाबाद में तो इतने ज़्यादा वाइल्ड बोर होते हैं, हमारे ये जानवर हमारे मुल्क में है। मतलब एक तस्वीर दिखाने से क्या हो जाएगा? मतलब हम लोग भी बड़े हुए हैं यही किताबें पढ़ के। मैं जैसे कह रही थी वो थ्री लिटिल पिग्स और ये किताबें पढ़ के, मतलब हम पे कौन सा कोई ऐसा कोई असर पड़ गया कि या हमारे बच्चों पे पड़ जाएगा? मैं काबिल एहतराम बेनज़ीर साहिबा से, शाह साहिबा से ये कहना चाहता हूँ, वो भी जानवर हैं सिर्फ, लेकिन वो एक जानवर इस दुनिया में नहीं आया। अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ तबके को, 2-4 लोगों को इस जानवर पर एतराज है तो कोई हरज नहीं, जानवर बदल दे, जानवर इंसान ना बदले, जानवर बदल दे। अच्छा क्रिसमस, अब मेरी बात नहीं सुनती, अब मेरी बात सुन ले तो फिर उसका जवाब देना। मेरी बात पहले सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, पहले मेरी बात सुन ले। अच्छा, क्रिसमस, न्यू ईयर, हेलोवीन, वैलेंटाइन, अप्रैल फूल, ये मैथ में क्या कर रहे हैं? ये कहाँ है? किसने कहा है ये मैथ की किताब में था? ये रियाजी की किताब में, ये मैथ की किताब में है जिस पे पाबंदी लगाई है। नहीं तो इसमें क्या बुराई है? सारे कि सोशल दुनिया मीडिया में पे अगर ये कुछ मुल्क हैं जो बनाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर किसी अमेरिका में किसी की किताब में ईद का जिक्र हो तो क्या वो निकाल दें किताब में से? उस मुल्क में हम बैठे हुए हैं, हम उस मुल्क में बैठे हुए हैं। अच्छा चले, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको एकदम सही लगता है 2 मिनट के लिए ये सारों का टॉलरेंस होनी चाहिए। ये जो हम डिबेट करें 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं, पहले मज़हर साहब को कमेंट लेते हैं, उसके बाद डिबेट करेंगे ताकि मज़हर साहब भी शामिल गुफ्तगू उनको कर सकें। ठीक है मज़हर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी ऑप्शन भी नहीं में है। मेरा ख्याल है मसला टेक्स्ट बुक का भी नहीं है, मसला किताबों का भी नहीं है, मसला इस मुल्क में 72 साल में सोच पर पाबंदी का है। सोचे नहीं, जो मैं कहूँ वही बोलें, जो मैं सोचूं वही सोचें। आप बताएं कि इस मुल्क में किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर पाकिस्तान में जमहूरी जद्दोजहद की कोई कहीं है, कहीं पढ़ाई जाती है? इस मुल्क में बताया जाता है जमहूरियत क्या है, मार्शल्ला क्या है, आइन क्या होता है? माफ कीजिएगा, हमारा मसला ये है बुनियादी तौर पे कि हम तारीख भी अपने मतलब की लिखना चाहते हैं। हम तारीख को ये कह के डिस्टॉर्ट कहते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड तारीख है, और जो ये कह रहा होता है वो तारीख का तालिब इल्म नहीं होता। अब ये जो साहब हैं, राय मंजूर साहब, नहीं जानता उनको, आपने ब्लैंकेट उठा के 100 किताबों को बैन कर दिया। हो सकता है कि मसला, लेकिन जिस आदमी ने लिखी ये किताब, उसको बुला के आप उसकी लॉजिक तो पूछें, आप उससे आर्ग्यू करें। दलील यानी बुनियाद होती है दलील, इल्म की बुनियाद दलील होती है। आप दलील से उसको साबित करें कि आप गलत थे। आप दलील से, जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे, आप बुलाएं उनको, आप कहें जी रियाजी की किताब में इसकी क्या लॉजिक है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि MBBS में हम इस्लामिक हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, यानी मेडिकल एजुकेशन में MBBS में इस्लामिक हिस्ट्री का क्या ताल्लुक है, या इवन हिस्ट्री का क्या ताल्लुक है मेडिकल एजुकेशन में। तो असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये कि अगर आप किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं किसी किताब के उसमें, तो उसके माने ये नहीं होते कि आप किताब पर ही पाबंदी लगा दें, मां सिवाय इसके कि जहां तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत वाली बात आ जाए।
उसको तो समझ में आता है, और जी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उससे हेटरेड होता है, उससे नफरत जन्म लेती है, और उससे माशरे में फसाद आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब किताबों पर आप पाबंदी लगाई जा रही है इस मुल्क में, इस मुल्क में देखिए, इस मुल्क में जोश को नहीं पढ़ाया जाता, इस मुल्क में फैज को नहीं पढ़ाया जाता, इस मुल्क में जालिब को नहीं पढ़ाया जाता, इस मुल्क में फराज को नहीं पढ़ाया जाता, इस मुल्क में सिर्फ दरबारी मतलब आपको शोरा ये लगता पढ़ाए है जाते हैं, जो जिन्होंने ये दरबार में इकदाम जाके लिया शायरी गया की। है उसका ये वाला पॉइंट कि मौक़िफ़ सुना नहीं गया पब्लिकेशंस का, या हमारे चारों पैनलिस्ट की राय नहीं है, लेकिन भट्टी साहब और मज़े साहब चाहते हैं कि हम ये खुसूसी तौर पर वाजे कर दें कि भट्टी साहब कहते हैं काबिल एतराज़ मवाद ज़रूर हटना चाहिए, लेकिन जो पब्लिशर्स हैं, जो जिन्होंने मवाद ये किताबों में डाले मुतनाज़, उनसे बुला कर पूछना चाहिए उनका मौक़िफ़ के क्या है।